look great. No, this one. Oh my God. This is very inappropriate in this house. No, Mia. this is my How can you boyfriend. believe? How can you do this in this house? You know this This is my not, boyfriend. Your I'm so dad will sorry. kill you if you find out about this. This is Sean. Let's talk about it, Mia. I Can't made no believe it. This He's is coming with happening. me, No, though. He's coming with me. I can't believe I'm it. not This leaving. is- Sean, come with You me. want me to Don't come leave. No, inside? let's Yes, stop this. yes. Let's stop this. Yes, come in. We're gonna talk this out, and you sit over there. Mia, this is very, very disrespect in this house. You know your dad will kill us. You know your dad will kill you. You know He how doesn't your know dad. anything about him, though. You're very young, Mia, and you know that your dad wants you to get married with whoever he wants you to get I married don't with. want that. I don't want that. Mia, you know, look at him. You can get better than this, Don't Mia. say that. You don't know him. Look, he's a You don't he's a know biker, him. Mia. You look. Don't you think you can get better than It's this? just a means of transportation. It doesn't mean anything. I want to marry Mia. who I want to marry. Your I'm not mom, disrespecting and to your anybody. dad, and to everybody's in this house. I'm gonna get some tea while he's in the restroom. I'm gonna prove it to you, Mia, that this is not a good man for you. You can do better than that. When I need to do that, is it any inappropriate here? But I love her. I don't This, understand. her father will disown her. But she's a girl for me. She's the only one. Oh, so you don't like any other women? No. You don't look at any other girls? No, not at all. Babe, I gotta go. Why? I gotta go. I gotta get out of here. No, don't be silly, No, please. things have just gotten No, really please weird. just stay for a little bit. Trust me, I just. I know it's weird and it's not normal, but please just stay. Oh, so you guys, you're in love? Yeah. Yes. Oh, can you tell me the story? Of how we met? How you guys All right, met? I'm gonna sit through this and then I gotta go. All right. Thank you. I don't want to be rude. Well, it was the week that I had my math exam a few months ago. I was walking home from school and he rode his bike next to me and he pulled over. He asked me if I wanted to ride and I said, "No, you're a stranger on a bike. I do not want to ride, but thank you." So he parked his bike and he got out and he walked next to me. And we walked around the park by the school for a little bit, talking, getting to know each other, starting to like each other. And Then we I went did to the not. movies. कम ब्राह्म द्युत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन भगवान एक ही है दूसरा नहीं है न तस्य प्रतिमा अस्ति। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नहीं कहते, क्योंकि जो पहला अलिफ है वो हमज़तुल वसल है। आपको अगर अल्हम्दुलिल्लाह अहमद कहना होगा तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अहमदी कहोगे, आप अल्हम्दुलिल्लाह मैद नहीं कहोगे, क्योंकि वो अलिफ उसके नाम का हिस्सा है, जबकि अल्लाह का अलिफ उसके नाम का हिस्सा नहीं है। यानी कि अल लगाया गया है बाकी खुदाओं की तरह, लाह उसका नाम है। लाह अल लगाया जाता है जैसे अरब अपने खुदाओं के सामने लगाते हैं, जैसे अलमनत, अल्लत, अल उज़्ज़ा, ये इस्लाम से पहले की खुदाएँ हैं, हर किसी के नाम के सामने अल लगाया हुआ है। वैसे ही आपके अल्लाह के सामने भी अल लगाया गया है, नाम उसका है लाह। जी हाँ, पुराने अरब में बहुत सारे खुदा हुआ करते थे, लाह उनमें से ही एक का नाम था। सबूत देखिए हदीस। वही नाजिल होने से पहले भी मोहम्मद साहब हीरा गुफा के अंदर अल्लाह की इबादत करते थे, यानी कि मोहम्मद साहब को इस खुदा के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि ये खुदा पहले से बाकियों के साथ में मौजूद था। तो आपके इस खुदा का एक नाम है लाह, अपने नाम को लेकर के बड़ा सेंसिटिव है, गुरूर है, अपने नाम की शहादा पढ़ाता है, उसकी शक्ल भी है। ये आयत देखे 55-27, व यबका वजहु रब्बिक ज़ुल जलेली वल इकराम। तो यबका वजहु रब्बिक, आपके रब का शक्ल, वज तो यबका रह जाएगा तुम्हारे रब का शक्ल, वजहु रब्बिका जो जलाल और इकराम का मालिक है। उसका एक पैर भी है जो वो जहन्नम में डालेगा। ये देखे कुरान 68-42, 68-42, यौमा युक्शफु अन सैकिन व युदऔना इला सुजूद। तो जिस दिन खुल जाएगी, क्या खुल जाएगी? पिंडली। किसकी पिंडली? अल्लाह की पिंडली, मतलब पैर के नीचे का हिस्सा। इस आयत के सपोर्ट में मिल जाएगी आपको सही बुखारी 4919, 4919 सही बुखारी। इसमें क्लियरली लिखा है यक्शिफु रब्बुना आनसे की ही, हमारे रब अपनी पिंडली दिखाएंगे। उसकी 2 आँखें भी है। ये आयत देखें कुरान 20-39, 20-39,
अलकैतु अलैका महब्बतन मिन्नी वलितुस्नअ अला ऐनी, और मैं मोहब्बत ज़ाहिर करता हूँ कि तुम मेरे आँखों के सामने बड़े हो सको। अला ऐनी मतलब मेरी आँखों के सामने। और इस हदीस में चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सुनन अबी दाऊद 4320 4320 सुनन अबी दाऊद। अगर दज्जाल को देख करके पहचान ना पाओ तो ये याद रखना कि दज्जाल की एक आँख ख़राब है, यानी कि वो एक आँख का है, जबकि तुम्हारा रब एक आँख का नहीं है। मतलब आपके अल्लाह मियाँ के दोनों आँख से ही है। और इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे सही हदीस मिल जाएंगे आपको। सही मुस्लिम 2933A, सही बुखारी 7408, 7123 और भी बहुत सारे हैं। अब उसके दो दाहिने हाथ भी है। कुरान 5:64 कालतिल यहूद यदुल्ला मगलूला ला गुल्लत ऐदीहिम। यहूद कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, अल्लाह कहते हैं कि नहीं उनके हाथ बंधे हुए हैं। और बल यदैहु मबसूततैनी, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ तो फैले हुए हैं। यदैहु, तो देखिए यहूदों ने बस अल्लाह के हाथ की बात की है, जवाब में अल्लाह ने कहा कि मेरे दोनों हाथ फैले हुए हैं। बल यदैहु, बल्कि मेरे दोनों हाथ मबसूततैनी फैले हुए हैं, उनके दोनों हाथ, अल्लाह के दोनों हाथ फैले हुए हैं। 3875 हे इब्राहिम, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। खलक़तु बियदा, मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। खलक़तु बियदा, दोनों हाथों से बनाया। इसके ऊपर आपको और हदीसें मिलेंगी। सही मुस्लिम 4721, सुनन नसाई 5379 और भी बहुत सारे हैं। और हदीसों में ज़्यादातर ये कहा गया है कि दोनों हाथ दाहिने हाथ है। अब देखिए सही बुखारी 6227, 6227, अल्लाह ने आदम को अपने ही सूरत में बनाया। खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, अपने ही सूरत में बनाया अल्लाह ने आदम को। यानी कि आदम जैसे दिखता था वैसे ही अल्लाह भी दिखते हैं। और वो 7वें आसमान पर अपने अर्श के ऊपर बैठता है, यानी कि पीछे का हिस्सा भी है। अर्श की आयत देखे 40:7, 47, वो जो अर्श को उठाए हुए है, अल्लाह की अर्श की बात हो रही है। और दूसरी आयत देखे 69:17, 69:17, यहमिलु अर्श रब्बिक फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, उस दिन तुम्हारे रब के अर्श को 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए होंगे। अल्लाह की एक ज़ात भी है। ये आयत देखें सूरा अनबिया आयत 17, लौ अरदना अन नत्ताखिद लहवन लत्तखज़नहु लदुन्ना इन कुन्ना फ़ाइलीन। अब इस आयत को ऊपर से देखें या ट्रांसलेशन देखें तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। अगर हमें मज़ा करने के लिए किसी को चुनना होता तो हम उसे अपने में से चुन लेते, लेकिन ये आयत आपको ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर मज़ा करने के लिए चुनना होता, क्या चुनना होता, किसको चुनना होता और अपने में से कैसे चुन लेते, तो आपको तफसीर में जाना होगा। जब आप तफसीर में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि ये आयत कब नाजिल हुई थी। जब लोगों ने ये कहा कि जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं, तब अल्लाह ने ये कहा कि अगर हमें कोई बच्चा पैदा करना होता या हमें कोई बीवी चाहिए होती तो हम उसे जन्नत के हमारे अपने लोगों में से चुन लेते, पर हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो आप तफसीर देख सकते हो। अब उसकी एक ज़ात है तभी तो ये आयत आई है। उसका एक घर भी है काबा, उसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हो आप, नहीं तो किसी दूसरी तरफ भी आप पढ़ सकते थे। सच्चा खुदा तो हर तरफ है तो उसकी इबादत तो किसी भी तरफ कर सकते हो, लेकिन आपका खुदा तो काबे के अंदर रहता है, तो उसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हो, उसी की दी हुई पत्थर की इबादत करते हो, पत्थर परस्ती करते हो। इससे अच्छा तो भाई बुत परस्ती कर लेते। जी हाँ, काबे के इर्द गिर्द गोल गोल घूमना और काले पत्थर को चूमना ये एक तरीके की इबादत ही है। तो जी ये गलत रास्ता छोड़ो। ये ज़ात वाला, शरीर वाला, कत्लो किताल की बातें करने वाला, पत्थर परस्ती करवाने वाला, औरतों को गुलाम लौंडिया बनाने की बातें करने वाला इस झूठे खुदा की इबादत करना बंद करो, सही रास्ते पे आओ, वेद के सच्चे खुदा को मानो, अद्वैत शाखा में आओ या फिर आर्य समाज से संपर्क करो। पर्सनली मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं किसी खुदा को नहीं मानता, लेकिन आपको इतनी खुजली है वेद को लेकर के तो आओ घर वापसी करवाओ। चलो सच्चा खुदा आपको और आपके परिवार को सही सलामत रखे। ब्रह्म हाफिज़। अगर इस्लाम के ऊपर आपको हिंदी या उर्दू में डिबेट करनी है तो एडम सिकर या एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल पर जा सकते हो आप, और अगर अंग्रेज़ी या अरबी में डिबेट करनी है तो क्रिश्चियन प्रिंस चैनल पर जा सकते हो आप।